From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate. Arnab Goswami on The Debate at 9. Presented by Amity University. Powered by RP Sanjeev Goenka Group. Century Ply, Club Prime, PolicyBazaar.com and Sera. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. On The Debate tonight, I will have with me a very, very senior Congress leader with an expose. This very, very senior Congress leader has been the Congress Party's Lok Sabha face in 2 general elections, and he's coming live tonight with a big revelation on Republic. He says that he has proof that the Congress has many leaders who are promoted within the party, I don't know why, who are essentially anti-Hindu. Remember, this is a Congress Party top-level insider. He says that in the Congress leadership are many leaders who are not just anti-Hindutva, but anti-Hindu. He says they don't just hate the Ram temple coming up in Ayodhya. He says that they hate Lord Ram himself. Now, these are major, major revelations, viewers. They reflect what we suspected, that the Congress Party under Sonia Gandhi has unfortunately taken a totally anti-Hindu turn, that the party is anti-Hindu, that the party therefore wants to break up the Hindu vote using caste because its leadership is against Hinduism. And while the Congress Party does that, at the same time, their strategy is to break Hinduism and consolidate the Muslim vote by having secret meetings, like another top leader recently revealed in a secret tape that we had shown on Republic, these secret meetings between the Congress leadership in mosques across Karnataka. Now, viewers, the expose tonight is very important because it is less than 6 months to the general elections. And this is the time to make a choice. Yes, it is time to choose. Can India have a party whose leadership is anti-Hindu? In a country where over 80% of the population is Hindu, is it even conceivable to have an anti-Hindu, anti-Hinduism party in the Congress Party? Ladies and gentlemen, a choice we must make in the run-up to the general elections. Let's debate. This is a top Vadra aide, top Vadra Gandhi aide, top-level Congress leader making a big revelation tonight that the Congress Party essentially is anti-Hindu, and this is something that we are playing out. Ladies and gentlemen, there's something going wrong about Nitish Kumar, the way he's talking and behaving. It's not normal. The way he attacked and went personal against another former Chief Minister, Jitan Ram Manjhi, on the floor of the Assembly. What exactly is wrong with Nitish? Debating that at 10 p.m. tonight. And at 10:30, the Supreme Court has pulled up the Delhi government on the air emergency, AAP versus BJP at 10:30 p.m. And here are the headlines this Friday evening on The Debate tonight. मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है. Congress insider, top Vadra Gandhi aide, makes a revelation. He says many leaders promoted in the Congress are anti-Hindu and anti-Lord Ram.
The BJP points out at the Congress party's anti-Hindu history, calls the party allergic to Lord Ram. अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। Is there something wrong with Nitish Kumar? After the dirty sex talk, he mocks and insults and goes extremely personal with the former Chief Minister Jitan Ram Manjhi in unspeakable language on the floor of the House. एकदम जिसको हम कहते हैं एरोगेसी मतलब कि घमंडपना, उनमें घमंडपना की स्थिति आ गई है। वो अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं हम करते हैं वही बड़ा बात है। Manjhi fights back, alleges a deliberate conspiracy by Nitish's allies to dethrone the Chief Minister. As pollution rises to alarming levels, the Supreme Court pulls up the AAP government in Delhi. An IT department seizes close to 10 crore rupees in hard cash in Jaipur. Sources say the cash was brought in to be used in the election campaign. Ladies and gentlemen, in 2007, the UPA, the Congress party, told the Supreme Court that Lord Ram never existed. The Congress party said, and this was under Sonia Gandhi's guidance, that there is no proof that Lord Ram ever existed. They went on record and we were all shocked. Now, the decidedly anti-Hindu turn seems to be a policy decision of the Congress party. Congress leaders have coined words like Hindu terror, aimed at linking terrorism with Hinduism. They have created the word Hindu Taliban, aimed at linking the terrorist philosophy of the Taliban to that of Hinduism. And tonight, a very senior Congress leader who has been the party's face in several Lok Sabha elections has said that many leaders promoted in the Congress party hate Lord Ram. They don't just hate Hindutva, they hate Hinduism. They despise the word Hindu. This is not my claim, this is a claim of a very, very senior top Congress leader. Viewers, Lord Ram is worshipped by 1.1 billion people in India. Has Acharya Pramod Krishnan exposed what many wanted to hide about what's going on in the Congress party? An anti-Hindu turn. Let's debate. In 2 days, Ayodhya will witness spectacular Diwali celebrations with 21 million lamps being lit on Sarayu Ghat. It will be the biggest celebration in Ayodhya just 2 months ahead of Grand Ram Mandir inauguration. A mandir that has been in the making for decades. As we inch closer to the temple, a Congress insider has made an explosive statement with respect to party stand on Ram Mandir and Lord Ram. राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। Acharya Pramod Krishnam's statements have not come as a surprise for the BJP. Rather, they are calling it a confirmation of what they already knew. और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए एक एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में, जिसमें साफ साफ बाकायदा लिखित रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन था कि
हिंदू विरोधी नजर आ रहे थे, इसलिए चुनाव हार गए। और उसके बाद इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। यानी यह बहुत साफ है कि कांग्रेस के अंदर हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति अवमानना और हिंदू धर्म के प्रति घृणा और हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए कृत संकल्पित है। The Congress that told the Supreme Court in 2007 that there is no historical proof of Lord Ram. The same Congress whose leaders were against Ram Mandir construction. On the Ram Janmabhoomi, as a Hindu, obviously I'm very conscious that a vast majority of my fellow Hindus believe that was the specific birthplace of Ram. And for that reason, most good Hindus would want to see a Ram temple at the site where Ram was supposed to be born. But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. Ayodhya, what happened to the Babri Masjid? The jurisprudential basis of that judgment is extremely narrow. It's a very thin ledge. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. Now want a pie of Hindutva votes. राम मंदिर ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर अंत में बन रहा है। ये नई स्कीम है जिसमें गौमूत्र से दवाएं बनती है। हमने तय किया कि हम भी छत्तीसगढ़ की तरह आवारा पशु नहीं घूमे, इसलिए हमने गोधन योजना भी शुरू करी है। With historical anti-Hindu and anti-Lord Ram comments, can Congress now vie for Hindu votes? Let's debate. And today, viewers, on my program, I have with me Acharya Pramod Krishnan. He is right there in the screen right below me. He is a very senior Congress leader, has been their Lok Sabha candidate, and he's the person making the revelations today. Also with us, आज हमारे साथ है Chief Priest of Ram Janmabhoomi Temple, Acharya Satyendra Das, National Spokesperson of the BJP, Sanju Verma, Sadhvi Jayabharti, Vineet Goenka, Nikhil Jain, and Lokesh Jindal of the Congress Party. And I will begin with a few questions to Acharya Pramod Krishnan. Acharya ji, आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो नफरत करते हैं हिंदू शब्द से। राम मंदिर को ही नहीं नफरत करते, वो भगवान श्री राम से नफरत करते हैं। कौन है ये नेता? और अगर उनकी ऐसी राय है, ऐसा पोजीशन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी है, इसके टॉप लीडरशिप में इनको कैसे पोजीशन मिल रहा है? मुझे तो मतलब जब मैंने आपकी बात को आज मैं सुन रहा था, आपके साउंड बाइट को, मैंने सोचा कि ऐसे नेताओं को जगह कैसे मिल रही है और कौन है ये नेता? देश को जानना बहुत जरूरी है। ये कौन है नेता और ये क्या करते हैं जिस कारणवश आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं? आचार्य जी जरा बताएंगे हमको। देखिए अर्णब गोस्वामी जी, ये बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जो ए.के. एंटोनी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी वो भी यही था। जब 2014 में बहुत कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी, तो चुनाव क्यों हारी उसकी एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता ए.के. एंटोनी साहब को दी गई। एंड ए.के. एंटोनी हिंदू नहीं है, वो तो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं।
उन्होंने ये बात कही थी कि देश के अंदर एक मैसेज ये गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, जिसकी वजह से हम बुरी तरह हारे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो AK एंटोनी साहब ने जो बात कही वो उन्होंने कही कि देश में एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी और एंटोनी साहब की बात में बस ज़रा सा बारीक सा फ़र्क है। वो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर रह कर के मैं कांग्रेस पार्टी के आज भी साथ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ हिंदू विरोधी लोगों का जमावाड़ा होता जा रहा है, और ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो रहा है जिन्हें आप इनको हिंदू विरोधी क्यों कहते हैं आचार्य जी? क्षमा कीजिएगा, आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, जिसका मैं ट्रांसलेट कर दूं दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग कांग्रेगेशन ऑफ एंटी हिंदू लीडर्स विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो आप इनको एंटी हिंदू क्यों कहते हैं? ये ऐसी क्या चीज कहते हैं, करते हैं, या किस कारणवश आप इन लोगों को एंटी हिंदू कहते हैं? ये एंटी हिंदू क्यों है? ये कैसी सोच है? अगर आप नाम ले सके बताइए कौन है। ओके। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं जिसको आपको लगता है, जिससे आपको लगता है कि वो एंटी हिंदू है? अर्नब, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है और जो मानती है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे हम चलते हैं। महात्मा गांधी की हर सभा का जो शुभारंभ होता था वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इससे होता था। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी हर सभा, जो जनसभाएं होती थी, उनमें वंदे मातरम का नारा गूंजता था और भारत माता की जय के नारे गूंजते थे। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी आज इस मोड़ पे आ गई है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जो बहुत पावरफुल हैं, और वो लोग जो हैं उन्हें जैसे भगवान श्री राम के मंदिर का जब ताला खुलवाने की बात आई तो राजीव गांधी ने 1985 में खुलवाया, लेकिन सवाल इस बात का है कि 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा जब ताला खुलवाया गया, उसके बाद से लेके कोई कांग्रेस का नेता रामलला के दर्शन करने इसलिए नहीं गया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मानी गई है। लेकिन जब 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर बनेगा, और राम जन्मभूमि के निर्माण के मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यास का गठन हुआ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ी विडम्बना है, एंड दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर पार्टी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, जब फैसला आया, तो सब ने इसको स्वीकार किया। उसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं रह गया, लेकिन 2019 9 नवंबर के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, और मैं कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जब कह रहा हूँ, इसमें इंडिया अलायंस का भी कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने महसूस किया है क्या ऐसा तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है प्रमोद आचार्य जी, वैसे तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, एक मिनट आचार्य जी, वैसे मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं सब चीज़ों पे विश्वास कर लेता हूँ, मगर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, मुझे ये शक हो रहा है संजू वर्मा जी कि आचार्य जी इज अ ट्रोजन हॉर्स, जिसको कहते हैं, आप ट्रोजन हॉर्स हैं, आप प्रियंका वाड्रा के बहुत करीब हैं। आप ये बोलना आपने शुरू कर दिया है कि आज तक कोई, एक मिनट, कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता या नेत्री रामलला वहाँ पे नहीं गई हैं या गए हैं, और आपके इसके कहने के शीघ्र बाद शायद प्रियंका वाड्रा वहाँ पहुँच जाएंगी, और आप वैसे भी चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बने, तो मे बी आप जो अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द ग्राउंड कर रहे हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रो हिंदू है, सोनिया गांधी की तरह एंटी हिंदू नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं ताकि एक तरह से मोमेंटम बने, और उसके बाद आपकी जो राजनीतिक सोच है आपकी ये होगी कि इसके बाद जल्दी से आप प्रियंका वाड्रा को कहेंगे देखिए मैंने ऐसी बात कह दी, अभी आप जाके प्रूव कर दीजिए कि आप प्रो हिंदू हैं, क्योंकि आप आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप आचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मगर आप पॉलिटिक्स नेता भी हैं। आपको लग रहा है यही बड़ी अपॉर्चुनिटी है
कि प्रियंका वाड्रा को प्रो हिंदू पोजीशन करा दो, नहीं तो सोनिया गांधी जैसी एंटी हिंदू पोजीशन रह जाएगी। क्या ये आपका षड्यंत्र है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? अगर ऐसा षड्यंत्र है तो आप खुलकर कह दे कि हाँ मैं ऐसा षड्यंत्र कर रहा हूं। आचार्य जी कह दे, कोई हिचक ना हो। आचार्य जी खुलकर कह दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं कुछ लाफेबल है तो वो बोलेंगे ना, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आचार्य जी बोलेंगे ना। आप लाफ कीजिए, यू लाफ, आपको रोक रहा हूं, आप हंसिए। आचार्य जी बताइए। शर्मा's comedy nights. आचार्य जी, आचार्य जी ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में नहीं कर पाऊंगा। I will quit this show. अगर आप आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। I will quit this show. No, you don't quit. You continue. कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझसे करिए। मैं 1-to-1 पूछ रहा हूँ। मैंने सवाल आपको पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब दे। आप मुझसे सीधा सवाल। आप रुक जाइए, वॉल्यूम डाउन कीजिए दूसरों का। अब मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। Are you setting the ground for प्रियंका वाड्रा? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके हर कड़वे सवाल का जवाब दूंगा, और मैं किसी सवाल से बचना नहीं चाहता। जहां तक आपने ये बात कही कि ये कोई पॉलिटिकल एक फील्डिंग की जा रही है, तो हो सकता है कि आप इसको समझ रहे हों और आप इसको समझें, आप अपने तरीके से समझें। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ संदेह किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। संदेह में तो समझ गया ना, ये संकेत संकेत से बात कर रहे हैं आप। देखिए आप मुझे बोलिए, क्या आपने प्रियंका वाड्रा को कहा है कि जल्द अयोध्या जाइए, राम लल्ला के दर्शन कीजिए? क्या आपने कहा है कि नहीं कहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूं कि गलत समझ रहा हूं? बताइए। कि राहुल गांधी पहुंच जाए, सोनिया गांधी पहुंच जाए, क्योंकि आजकल पूरे देश में प्रो हिंदू सेंटिमेंट है, उसके पहले आप पहुंच जाइए। मगर मुझे बताइए कि आपने ये कहा है कि नहीं कहा है। दूसरी बात, अगर ये बात है तो पहले कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, उस पोजीशन को चेंज किए बिना राम लल्ला के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? पहले माफी मांगे। मैं कह रहा हूं पहले माफी मांगे कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने इस देश में, भारत जैसे सनातन भूमि में, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम लल्ला, भगवान श्री राम तो कभी थे ही नहीं। अभी उस पोजीशन को बिना चेंज किए हुए आज, क्योंकि आपके लिए राजनीतिक तौर से बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बात हो जाती है कि अभी तो पूरे देश में राम मंदिर का माहौल बन रहा है, उसके पहले जल्दी राम लल्ला के दर्शन कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी इधर है, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता बिना इस बात के लिए माफी मांगे हुए कि उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत हुई कि भारत में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, इसके लिए माफी मांगे बिना कोई राम लल्ला के दर्शन कर सकता है क्या? जिनको मानते ही ना हो आचार्य जी। पहले प्रियंका वाड्रा कहे कि मेरी माता श्री सोनिया गांधी ने गलत किया जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही। पहले तो मेरा जवाब नहीं सुना और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले ये बात कहे, आपको मेरा साथ देना चाहिए और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सच के साथ हूं। पूरा होने दो, उसके बाद आप दूरदर्शी है, मैं भी बहुत कुछ देख पाता हूं। अर्णव जी बोलिए। अर्णव, मेरी बात को समझने की ना कोशिश आप कर रहे हैं, और बजाय इसके कि आप मेरा सपोर्ट करें मुझ पे हमला कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जो इंडिया गठबंधन में है, वो कहता है मैं सनातन धर्म को समाप्त कर दूंगा। वो मिनिस्टर है, उसका फादर चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है और हम उसके साथ खड़े रहें, तो इसका मतलब है कि हम हिंदू विरोधी हो गए। तो मैं तो चुप नहीं रह सकता हूं। दूसरी बात, बिहार के एक मिनिस्टर हैं जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं। जो राम का द्रोही है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही, जो राम का नहीं हो सकता है वो भारत का नहीं हो सकता है। और भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन के बिना और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। सनातन और राम कहने के लिए बड़ी बातें आप कह रहे हैं। अगर जो व्यक्ति सनातन धर्म का विरोध करता है, जो व्यक्ति राम का द्रोही है, जो आचार्य सत्येंद्र दास जो राम का दर्शन करने नहीं जा सकता है, आचार्य सत्येंद्र दास, ऐसे लोगों का जमावाड़ा अगर पार्टी में हो गया है, तो अगर मैंने ये बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राम नाम से चिढ़ते हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आपने अच्छी बात कही। आप कौन है वो लोग?
और मैं क्या जो कह रहा हूं प्रियंका वाड्रा ऑन एयर उनमें कह से रहा हूं, नहीं सारी है? दुनिया के सामने कह रहा हूं। आप क्या मुझ पे प्रियंका इल्जाम वाड्रा लगा उनमें सकते से हो, नहीं है? लेकिन आचार्य आपको मुझ जी, पे इल्जाम ये ट्रायल लगाने का बलून हक वाली नहीं है अभी। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। लगा क्या सकते हो। प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है आचार्य जी? क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है? I am not like that person. I am not like that person. You know each and everything about me. जब स्टालिन You know each and about me. जब You स्टालिन ने कहा कि you know very सनातन well धर्म- about me. सनातन धर्म I को am खत्म not कर like दो, that तब person. प्रियंका वाड्रा पिछले I am 2 not महीनों से चुप opportunist क्यों थी? person. I am not opportunist person. You know each No, and but everything where about is me. your leader, You know Priyanka each and Vadra? everything about me. But where, I am why not did like that Priyanka- person. I- मैं जो I कहता know, हूं आचार्य डंडे की जी, I चोट know, पे कहता हूं। I know, आपके शो में I कह रहा know, हूं। आचार्य जी, I know, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। आचार्य जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। मेरा ऐसा हो गया है ना, इतनी एक्सपीरियंस हो गई है जीवन में, मैं किसी चीज को ना फेस वैल्यू पे नहीं लेता। मुझे लगता है कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है। और मुझे दुख होता है आचार्य सत्येंद्र दास जी कि आजकल भगवान श्री राम के नाम पर भी राजनीति हो रही। मेरा सीधा सवाल आचार्य सत्येंद्र दास जी पे है, क्या कांग्रेस पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णन जो बात कह रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है? वो क्यों कह रहे हैं? देखिए हमारे भगवान राम का स्वभाव इस प्रकार से है कि कोटि विप्रवद लागई जाहू, आए सरल तजऊ नहीं ताहू। यदि समर्पण भगवान प्रति रामलला के प्रति ऐसा है उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, तो वह हमारे प्रभु इस प्रकार से दयालु हैं कि उन पर दया करके और उनके जितने भी अपराध हैं क्षमा कर देंगे। लेकिन इतने अपराध हैं, कोई भी मैं देखा हूँ कि जब चल रहा था राम जन्मभूमि का केस, तो इतना विरोध किए हैं कि किसी प्रकार से उसको क्षमा योग्य है ही नहीं है, केवल समर्पण है। यदि समर्पण इस प्रकार से करते हैं तो संभव है कि उनके ऊपर भगवान रामलला की कृपा हो और वो क्षमा कर दें। लेकिन इतना मैं शुरू से देखा हूँ, जितने भी जब इसकी तारीख पड़ती थी कि किसी प्रकार से इसका समाधान हो, तब कांग्रेस पार्टी ने उसको बराबर विरोध करती चली आई है। और इतना विरोध किया है कि कहीं जब ये सभी लोग को पता है, पार्टी को पता है, सभी लोग को पता है, तो इस प्रकार से जो उनका विरोध हुआ है, राम के प्रति हुआ है और राम मंदिर के प्रति हुआ है, वह वस्तुतः क्षमा योग्य नहीं है। क्योंकि यदि क्षमा योग्य होता तो इस प्रकार से ऐसी बात नहीं करते। हाँ, अब एक प्रथा चल गई है कि आप क्षमा मांग ले और इस प्रकार से कह रहे तो हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करने वाला व्यक्ति अब भगवान ही क्षमा कर सकते हैं, किसी मानव के प्रति क्षमा करने की बात नहीं है। इसलिए जो कृति कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है वो वस्तुतः क्षमा योग्य नहीं है। मुझे तो लगता है इसमें दो ही बातें हो सकती है आचार्य जी। जो अगर आज जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, जो देश का नंबर 1 हेडलाइन है संजू, इसके दो ही तात्पर्य हो सकते हैं। दे कैन ओनली बी 2 meanings which can be driven out of it. One is that he is a trial balloon for Priyanka Vadra, who he supports. He wants Priyanka to go running to Ayodhya and prove that she is the last remaining pro-Hindu person within the Congress party, because he sees the political opportunity there, since her mother has been seen to be profoundly anti-Hindu. The other meaning which can be derived is he's suffocated and is going to quit the Congress party and maybe join the BJP. Now, having said that, इन्होंने आज एक बड़ी बात कही संजू वर्मा जी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी, और महात्मा गांधी अपनी हर सभा को शुरू करते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरा सवाल ये होगा संजू, क्या आज कांग्रेस पार्टी संभव है क्या कोई सभा भगवान श्री राम का नाम लेकर वो अपने सभा को शुरू करे? क्योंकि फिर कहा जाएगा ओहो यू आर कम्युनल, यू आर हिंदुत्वा, यू आर एंटी मुस्लिम, ये बातें कही जाएंगी। क्या आज संभव है कि कोई कांग्रेस पार्टी की सभा भगवान श्री राम के नाम को लेकर शुरू हो? ऐसे मत कीजिए, संजू वर्मा जवाब देंगी उसके बाद। संजू। थैंक यू। अर्नब जी, पहले तो आपके दर्शकों को धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू से, अर्नब आप सिंपल तो नहीं हो, यू आर एज सिंपल एज द पाइथागोरस थ्योरम। बट हैविंग सेड दैट, on a more on a more serious note, I just have this to say
आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ मैंने कई डिबेट्स में हिस्सा लिया है और कई बार हमारी बहुत गर्मागर्म बहस भी हुई है, जहां पर वी हैव बीन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। बट कुछ महीनों से मैं ये देख रही हूं कि जब कांग्रेस पार्टी के कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर सूरमा, चाहे वो भगवान श्री राम हो या फिर हिंदुइज्म और हिंदू भक्तों और राम भक्तों की श्रद्धा पर लोगों ने सवाल खड़े किए हों, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तब बिना डर के और बिना अंजाम के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी बुलंद आवाज से अपने बयान में एक सार्थकता के साथ बात कही है और उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूं, मैं आदर करती हूं। Now coming to the moot topic about whether Acharya Pramod Krishnan is a Trojan horse who's batting for Priyanka Vadra, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी that the Congress is a confused house, and I will say this on the basis of what we've seen in the last 72 hours. इनके कुछ नेता है कमलनाथ जो अभी भगवान श्री राम की दुहाई देते हैं, तो वहां दिग्विजय सिंह को समझ नहीं आ रहा कि मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना जो वजूद है वो पूरे इक्वेशन में लाने के लिए मैं क्या कमलनाथ का समर्थन करूं या समर्थन ना करूं। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण के गोत्र से बिलोंग करता हूं, दूसरी तरफ ये वही राहुल गांधी है जो कहते हैं मंदिरों में तो सिर्फ बलात्कार होते हैं। शशि थरूर जो इनके एक दिग्गज इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, वो कहते हैं 2019 के चुनाव से पहले शशि थरूर का ये बयान पब्लिक डोमेन पर है, इफ द बीजेपी कम्स बैक टू पावर अगेन वी विल सी द राइज ऑफ हिंदू तालिबान। जो सुशील कुमार शिंदे हैं, who was earlier the Home Minister of India and a senior Congress leader, he has also spoken about how the 26/11 Mumbai terror attack was हिंदुओं की और आरएसएस की साजिश। So and saffron terror, who can forget that the whole concept of saffron terror was given a new dimension altogether by the likes of P. Chidambaram, by the likes of Sushil Kumar Shinde and a whole host of Congress leaders who today have zero relevance. And सबसे बड़ी बात ये, आज तो कपिल सिब्बल राज्यसभा की टिकट के लालच में कांग्रेस छोड़कर he joined समाजवादी पार्टी, but there is a tweet of Kapil Sibal which never goes out of fashion, and though he has deleted it, it keeps cropping up on my timeline, where he has said यदि राम जन्मभूमि बन गया, मंदिर बन गया, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। I would rather kill myself than see the construction of Ram Janmabhoomi Mandir during my lifetime. ये कपिल सिब्बल, आधे कांग्रेस और आधे समाजवादी पार्टी, ये तो इनका हालचाल है। And last but not the least, I will end my comments by just saying one thing. I've been on a zillion debates with you, Arnab. Udayanidhi Stalin, who is a close ally of Rahul Gandhi, says Sanatan Dharma is akin to dengue, malaria, leprosy, COVID, blah blah blah. और प्रियंक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे, who is the Congress president, उनके बेटे हैं, and प्रियंक खड़गे कहते हैं, so what if Udayanidhi Stalin made those deplorable remarks? There's nothing wrong. Sanatan Dharma is indeed akin to COVID, dengue, malaria, what have you. And then he brazenly says, oh, we were talking about a casteless society. No. We were not condemning Hinduism. ये है इनकी hypocrisy और चापलूसी का जीता जागता अवतार, और पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक को आप मूर्ख मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। ये पब्लिक आपके मैं अपनी ओर से एक बात कहूंगा। एक निखिल ये पूछते थे, अभी साउंड बाइट भी देखा था कि विल मोर टेम्पल्स क्रिएट मोर जॉब्स, विल मोर हिंदू टेम्पल्स क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, विल मोर डू वी नीड टेम्पल्स और हॉस्पिटल्स। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, साध्वी जया भारती और निखिल मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए, यही कांग्रेस नेता क्या कहेंगे कभी? विल मोर मॉस्क्स लीड टू मोर जॉब्स? विल मोर मॉस्क्स रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट? डू वी नीड मॉस्क्स और हॉस्पिटल्स? ये क्या बात है? नहीं, ये क्या बात है? ये क्या लाइन है? ये कौन सी सेक्युलर लाइन है? ये कौन सी स्यूडो सेक्युलर थिंकिंग है? सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को, अरे कोई क्या मंदिर बना के कोई कह रहा है कि अस्पताल मत बनाओ? नहीं, निखिल जवाब दीजिए।
ये मानसिकता क्या है? Do we need temples or jobs? Why? Have you ever asked, do we need mosques or jobs? This is a mindset. Can I at least now respond? Mindset है। बोल रहे आचार्य प्रमोद कृष्ण, बहुत अच्छा किया। I am a voter. I want my party can I to come in or respect only- my can faith. only What's Sanjay your blabber problem? lies? If I am giving my political party an agenda, and if my political party is carrying out, you had no gumption to carry it out. Don't speak rubbish. Arnab, who What was is that it? question? No political party. Arnab, Your who was that political question party to? can carry an agenda to stand against Arnab, Lord who Ram. was in Then question? BJP can carry an agenda to be for Ram. Be clear with that. How are you Congress saying party that? Where carried is the an proof? anti-Ram, anti-Hindu Madam, please get agenda outside the to WhatsApp out my university. memory. Get to out outside my memory. WhatsApp So university. if Thank you, you Arnab. as a I'm political leaving. party, Into the real world. नहीं, नहीं, आचार्य जी जाइए मत। Which party is आचार्य जी रुक जाइए। If you आचार्य जी रुक जाइए। There is आचार्य जी nothing रुक wrong जाइए। with आचार्य जी जाइए मत। आचार्य जी रुक जाइए। आचार्य जी को एक और सवाल। आचार्य जी को एक और सवाल। आचार्य प्रमोद कृष्णन को एक और सवाल। एक और सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन को। of the BJP. नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने जो सोनिया गांधी को एंटी हिंदू कहा, आपने जो एक मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने जो सोनिया गांधी जी को एंटी हिंदू कहा और आपके शब्द थे कि राम से नफरत करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, राम मंदिर को रोकने की प्रयास किसने की सबको पता है, इस रहस्य पर कोई पर्दा बाकी नहीं है, तो हम सबको पता है कि आपका इशारा तो सोनिया गांधी को था, क्योंकि सोनिया गांधी के समय में ही वो एफिडेविट दी गई। मैं क्या करूं, मैं शीघ्र कई दिनों में रिपब्लिक भारत में फिर से एंकरिंग करूंगा। मेरी बात सुनिए आचार्य जी, राम मंदिर को रोकने की प्रयास कितने की? न कापिए मत, सुनिए, ये रहस्य आप ही खोल दे, क्योंकि सोनिया गांधी जो थी, क्या आप कह सकते हैं सोनिया गांधी नहीं थी? क्या सोनिया गांधी ने वो एफिडेविट नहीं सबमिट करवाई? अरे कपिल सिब्बल तो मोहरा थे, मोहरे के पीछे किसकी हाथ थी, किसकी चाल थी? क्या ये सोनिया गांधी की चाल नहीं थी कि एफिडेविट कर दो सुप्रीम कोर्ट की भगवान श्री राम थे ही नहीं? क्या सोनिया गांधी की चाल नहीं थी कि कपिल सिब्बल ने वहां पे एफिडेविट फाइल की कि भैया आप 2019 के चुनाव के पहले कभी भी राम मंदिर इशू को सुप्रीम कोर्ट में सेटल ना कर दे? सोनिया गांधी के नाम लेने से आप डरते क्यों है? इतना कुछ कह दिया है तो क्या डरते क्यों है? नाम लेने से डरते क्यों? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, नाम लीजिए, खुलकर कहिए, पूरी बात कहिए। ये संकेत में बात करना ठीक नहीं है। संकेत किसके तरफ है मुझे पता है। This is getting very Hindi centric and Hindi अर्णब गोस्वामी जी, अर्णब गोस्वामी जी, एक तो मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ संजू वर्मा जी का कि उन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान भी किया और उस भावनाओं को समझने की कोशिश की। आप मेरी भावनाओं को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना मेरी भावनाओं को शायद समझ पाएंगे। आप जो कहना चाहते हैं वो आप कहिए, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर सोनिया गांधी हैं जिन्हें हिंदू नाम से नफरत है, सोनिया गांधी जो के एंटी विरोध हिंदू हैं, आज तक करने नहीं गए हैं। क्या सोनिया गांधी एंटी हिंदू हैं? जो राम लला के दर्शन करना नहीं चाहते हैं, जो भगवान राम के प्रति समर्पित नहीं है, जो भगवान राम का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, भगवान राम के नाम के धोखा देना चाहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता है। और इस पर मैं आपसे खुली डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन मैं आज इस डिबेट का मगर जो अभी तक नहीं हुए, चुनाव के पहले होने की कोशिश करेंगे, तो उन चुनावी हिंदुओं पर हम विश्वास क्यों करें? जो अब तक नहीं हो पाए भगवान श्री राम के, तो वो चुनावी हिंदुओं का हम विश्वास क्यों करें? बताइए, पूछता है भारत। बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप मेरे प्रोग्राम से जा नहीं सकते, सवाल तो आपका पीछा करते रहेंगे। भारत को पूछने का हक है। अर्णब गोस्वामी जी, मैं पूछ रहा है भारत, आचार्य जी पूछ रहा है आपसे, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैंने अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधी क्या एंटी हिंदू नहीं है? बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के साधुओं पर जो चुप रही। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आपको जो कहना कहिए, जो समझना समझिए। मैं जो कह रहा हूं वो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, जो राम के नाम से नफरत करते हैं, नेता जो आज तक सोनिया राम लला गांधी के दर्शन करने नहीं गए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेत्री थी, सोनिया गांधी कांग्रेस की टॉप लीडर थी। जब वो एफिडेविट फाइल हुई,
2018 की एफिडेविट, इसका 2019 विश्लेषण की आप करिए, एफिडेविट, 2014 इसका की विश्लेषण एफिडेविट, आप सोनिया करिए। गांधी वहां पे आप किस पे प्रेसिडेंट हमला करना चाहते हैं, किस लीजिए पे हमला नहीं करना चाहते हैं, ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज बनता है। मैंने जो कहना था कह दिया, और मैंने जो कहना था कह दिया। मुझे जो कहना होगा मैं विनीत कहूंगा। गोयल का नाम लेना मैं चाहिए किसी कि से नहीं डरता आचार्य हूं। जी को? ना मैं आपसे संजू घबरा वर्मा रहा नाम हूं, नहीं ना ले मैं रहा। आपके सवालों से घबरा रहा हूं। नहीं, आप लेकिन मैं पूरी ये बात कहना कहिए। चाहता हूं कि मैं ये कह वो रहा हूं, आज कांग्रेस expose हो पार्टी है जाए। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है। संजू जी कुछ कह रहे हैं, एक्सपोज हो जाए, नाम सबके अपने सामने राजा हो, राम, नाम सबके सामने हो। और मैं क्या कहूं? मुझे अच्छा अरे लगा भाई, है, क्या मुझे सोनिया अच्छा गांधी कोई लगा। प्रोग्राम और मैं रघुपति राघव राजा राम हृदय से का मैं नाम आभार लेकर व्यक्त कर करता सकती हूं। हैं? सबको रखिए ना स्क्रीन मैं पर, क्या भारतीय करें? जनता पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन अफसोस है अर्णब गोस्वामी कि आप मेरी भावनाओं को नहीं समझे। आपने मुझ पर इल्जाम लगाए, आपने मुझ पर निशाने साधे, आपने मुझे टारगेट किया। मुझे इसका कष्ट रहेगा। एक पवित्र भावनाओं से कोई व्यक्ति अगर आपके शो में आता है तो उसका सम्मान करिएगा, और मैं आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। मैं आपको राष्ट्रभक्त पत्रकार मानता हूं। आपके और हमारी पार्टी के बीच में कितने मतभेद रहे, लेकिन मैंने हमेशा आपका सम्मान किया। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने मेरी पवित्र भावनाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, संदेह किया है। मैं तो सिर्फ राजनीतिक स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, आज आपके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। देयर इज नो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। नो, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त झूठ बोला जाए। राजनीति में होने का मतलब अर्णब गोस्वामी ये नहीं होता है। राजनीति में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हर वक्त झूठ बोला जाए। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसानियत खो दें। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान राम और सनातन धर्म पर समझौता कर लें। राजनीति में होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम सनातन धर्म पर समझौता करेंगे। हम अपने राष्ट्र पर समझौता करें। भारत माता के नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वंदे मातरम पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। सनातन बड़ा है। सनातन के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ, मैं राम के साथ हूँ। मैं राम की श्री चरणों में सब राजनीतिक सत्ता को ठोकर पे मार सकता हूँ। I need to come in for a debate. और I just want to ask one thing. You know, आज कई लोग हैं कांग्रेस के नेता और दिग्गज नेता जो ये कहते हैं, why is the BJP trying to appropriate the राम मंदिर legacy? राम मंदिर जो अभी बनेगा और जनवरी 22, 2024 को उसका भव्य उद्घाटन भी होगा नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा। तो कांग्रेस के पेट में इतना उबाल आ चुका है, इतने पेट में दर्द हो रहा है। They are asking the BJP, why are we trying to appropriate a national legacy? So I have just one question. It was way back in 1976. Indira Gandhi was the Prime Minister and a committee formed under the aegis of B.D. Lal and the famous archaeologist K.K. Mohammed. They came out with a finding saying that on the western side of the Babri Masjid Mosque, under that on the western side are the remains of a Hindu temple. Indira Gandhi ने क्या किया? That report was consigned to the dustbin. From 1976 till 2019, we had to wait for more than 4 decades. It was on the 9th of November 2019 that by virtue of a majority Supreme Court judgment under the aegis of Justice Ranjan Gogoi, that, you know, a diktat was given that yes, this land belongs to Ram Lalla और यहाँ मंदिर बनेगा। और हमने कहा था मंदिर वही ये बात है ना, that is the point. That is the point. हमने कहा था मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और हमने करके ये रेस में है। संजू ये रेस में है। संजू कांग्रेस पार्टी रेस में है। कांग्रेस पार्टी इज इन द रेस। विनीत गोयनका आप कैसे देखते हैं? आप आचार्य प्रमोद कृष्ण को क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो कह रहे हैं मैं उनके पवित्र भावनाओं को, his pure intentions I cannot understand. Would you like to say something to him? Not that my intentions are impure, yeah. Yeah, Ram मेरे भी intentions pure है, journalistically pure. Ram to you and Ram to everybody on the show and all the audience who are watching me right now. What do you expect from Sonia Gandhi, the daughter-in-law of Firoz Bhai and daughter of an Italian Christian, and also Acharya Pramod ji? Both of them, till now, were calling Ram as to be mythology. They gave name to Hindu as a Hindu terror, and moreover, they try to create that the disputed land is a masjid. See, even after the Supreme Court has announced that the disputed land is a Ram Mandir, they yet call it as to be a masjid. That's a shameful thing. We have seen that in the era of UPA under the leadership of Sonia ji,
churches has amassed wealth and also land. And Acharya Pramod Krishnan ji was well behind the family and standing with them till date. Naturally, his behavior is under scandal. I cannot believe that after 9 years and 8 months, he has this visualization that he should come and speak on behalf of Iran. Acharya ji, झूठी सही सच्ची सही, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो भूली भटके में आना अच्छा ही है, लेकिन ये बात तो संदेह तो जरूर होगा कि 9 साल 8 महीने बाद आज क्यों आपको जागृति हुई, आज क्यों आपको दर्शन हुए, इसके बारे में जरा बताएं। और एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, जो ना हुआ हमारे राम का वो नहीं हमारे कोई काम का। आचार्य जी बोध करें और बताएं कि 9 साल तक आप कहाँ थे, क्यों थे, चुप क्यों थे? हाँ, चुप क्यों थे? हाँ आचार्य जी। नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी चुप नहीं था। इसका जवाब संजू वर्मा दे चुकी हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं वो दे चुकी हैं। और सच सच होता है। राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा झूठ बोला जाए। आचार्य जी आपने झूठ नहीं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक सेकंड लिसन। मुझे लगता है सुनिए there is no need give me a moment. I would hear. मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता आप मुझे इनाम दें। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे कोई तमगा दें। मैं ये भी नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं आपको रोकूंगा कि आप अपने टारगेट को अचीव करने में कोई कसर छोड़ें। आप अपने अपने गेम करिएगा। मैंने स्वच्छ हृदय से, निर्मल मन से, और भगवान श्री राम ने कहा निर्मल मन जन सो मगर मैं देखिए छिद्र न भावा। अर्णब गोस्वामी जी आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। अर्णब गोस्वामी आपको मेरा साथ देना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, मगर मैं आपके साथ देना चाहिए। जो राम के विरोधी हैं, आपके साथ हूं। अरे आचार्य जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। नहीं मानते। मेरी बात सुनिए। आचार्य सत्येंद्र जैन जी है। देखिए आचार्य सत्येंद्र जैन जी हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। मैं आचार्य सत्येंद्र जी से उनके थ्रू एक बात कहलवाना चाहता हूं आपको। देखिए आचार्य जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी आप बहुत ही वरिष्ठ आचार्य है, धर्म गुरु हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है। आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे भी पूजनीय है भाई। आपके थोड़ी हम तो हमारे भी पूजनीय है, वो सुन रहे अपने वाले लोग। नहीं अरे आचार्य सत्येंद्र दास नहीं, आचार्य सत्येंद्र दास जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी मेरे ऊपर संदेह कर ही नहीं सकते हैं। ना मेरी निष्ठा पे कर सकते हैं, ना श्रद्धा पे कर सकते हैं। आप पर संदेह नहीं कर रहे। आचार्य सत्येंद्र दास जी अगर ये कह दें कि आचार्य प्रमोद संदेह की निष्ठा में, श्रद्धा में, आस्था में कमी है, पूछना आचार्य प्रमोद तो मैं जल समाधि ले लूंगा। नहीं एक मिनट आचार्य विनीत रुक जा। विनीत दिस द मोमेंट, 1 मिनट। विनीत वेट। आचार्य सत्येंद्र जयंती आप पर संदेह नहीं कर रहे। मैं आचार्य जी को चरण स्पर्श करते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। आचार्य सत्येंद्र दास जी मुझे यह बताइए, जब किसी व्यक्ति को एहसास हो जाता है जीवन में, जब किसी को ये मतलब इस चीज की प्राप्ति हो जाती है कि ये पार्टी जिसमें मैं हूं वो हिंदू विरोधी हैं, तब क्या घुट घुट कर जीने का कोई मतलब होता है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कहते हैं मेरी पार्टी जो है सनातन के खिलाफ है, और क्योंकि मैं धर्म गुरु हूं, मैं सनातनी हूं, मेरे खिलाफ है। तो क्या उनको घुट घुट कर उसी एंटी हिंदू पार्टी में रहने का कोई मतलब है? आचार्य सत्येंद्र दास जी, आप आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उनकी भावनाएं जो हैं, भावना से भाव बस भगवान, उनकी भावना बहुत ही पवित्र है और अपनी भावना से ही वो बोलते हैं। और इसलिए इतने पवित्र झूठ बोलो के कारण से जो बनावटी बातें हैं वो से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो भी बोलते हैं और जो कहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो सनातन धर्म का नहीं वो किसी का नहीं, और जो इस प्रकार से राम का विरोधी है, उन्होंने यही भी कहा है कि हमारी पार्टियों, इतना कहना कम नहीं है, साहस की बात है कि हमारी पार्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू के विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं। ये सारी बातें वो कह चुके हैं। उनकी भावनाएं बहुत ही उज्जवल और स्वच्छ है। इसलिए मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के सम्मान करता हूं, और उन्होंने जो कहा है जिस पार्टी में रह करके और पार्टी के ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने कहा है कि जो वस्तुतः विरोधी हैं,
तो विरोधी जो लोग हैं उनको बताएं, यह कहना साहस की बात है, और जो उन्होंने व्यक्त किया है उनकी भावना इस प्रकार से है जो भगवान राम के प्रति समर्पित है। 10 seconds. साध्वी जया भारती फर्स्ट, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आचार्य सत्येंद्र दास जी का। और मैं अर्णब गोस्वामी 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम से चिढ़ है, जो राम के नाम से चिढ़ते हैं, जिन्हें राम मंदिर की बात छोड़िए भगवान राम से चिढ़ते हैं, हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगेगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही राम विरोधी है, उस दिन मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। धन्यवाद। राम राम। ये क्वालिफाइड स्टेटमेंट इसको कहते हैं। नहीं रुकिए एक मिनट, साध्वी जया भारती। Yeah, Arnab, I would say that yes, I would like to second Sanju Verma here that, we've seen in our memory that wherever it has been an issue related to the Hindu or Sanatan Dharma, then Acharya Pramod Krishnan has come out independently and he's voiced what his feelings and his concerns are. That's his on record. But however, it will be very interesting that once he is in the party and he is saying, while he is still in the party and he is saying, when he's saying that, there are some leaders who are anti-Hindu and factions inside the India Alliance, which it will be very interesting to see how it unfolds and how when you, how would you very interesting. be Okay, there Sanju, within the same 10 party. seconds. Overtime, Sanju. Okay, 10 seconds में I will just say, मोदी है तो मुमकिन है, thanks to नरेंद्र मोदी। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा ये मजबूर हो गए हैं जो मंदिरों के घाट घाट का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भगवा भी निखिल, प्लेकार्ड नीचे रखिए, टीका भी लगाएंगे, प्लेकार्ड नीचे रखिए, भी पहनेंगे और रुद्राक्ष भी पहनेंगे और गर्व से पहनेंगे। Either let me speak, Arnab, or at least let me show my sign of protest and dissent. 52 minutes into the debate, you have not let any opposition person speak for half a minute even. The entire debate has been against the Congress. So much of it has been lies. What is this? I don't understand. Acharya Pramod Krishnan was now I can't hear your audio. All the time. These are senior religious figures. That even I've spoken less to. Nikhil, next time I'll get you to speak more. But thank you for the placard. झूठ कोई नहीं बोल रहा, आपके साथ disagree कर रहे हैं. I thank you, ladies and gentlemen. Very interesting turn of events. And when I come back on the other side on this very special Diwali weekend, pre-Diwali weekend show. On the other side tonight, what exactly is going wrong with Nitish Kumar? Something is wrong. The way he's attacking, abusing, doing sex talk, using filthy language. What's wrong? And its impact on the India Alliance in a few minutes.